A very good morning to all of you. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, now we are coming into the phase of the revision test paper, revision test 1, paper 5 of the accountancy. So basically, I want to express my ideas regarding the revision test is that कि आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है. That's why in this video, in this class, we are talking about the some of the important practical problem related to the cash flow statement. And this question is helpful for your board examination as well as for your revision test, paper 5 of the accountancy. Because you know very well, if you are talking about the revision test 1 paper 5 of the accountancy, so it includes the two important chapter in it. The first one is a cash flow statement and second one is a accounting ratio. So in this class we discussed the few of the important practical problem related to the cash flow statement. I hope it will helps to enhance your the practical problem uh, and the concept regarding the cash flow statement. Okay, so the question is, this question is already shared by me in your WhatsApp group, as well as we are also talking about this question in the online classes. So the question number 22 is, the following are the comparative balance sheet for the year 2017, 18 and 18 and 19, in which the information are given as follows. The first one is the shareholder fund. It includes the share capital 74,000 and 70,000. Statement of profit and loss 10,560 and 10,040. Non-current liability debenture is 6,000 and 12,000. Trade payable is 10,840 and 10,360. And the outstanding expenses 800 and 700. So the total of the liability side of the balance sheet for the current year is 1,03,200 and for the previous year is 1,03,100. And if you are talking about the information regarding the asset side, so the assets is non-current assets. Land is 30,000 and for the current year and the previous year is 20,000. Goodwill is 5,000 for the current year and the previous year is 10,000. Whereas the current assets data is 17,700 and the previous year is 14,900. Inventory is 42,700 and 49,200 for the previous year. And cash in cash equivalent, you know very well, cash in cash equivalent is a very important part of your cash flow statement question. That is 7,800 and 9,000 for the previous year. That's why the answer of the cash flow statement is 1200. Why? Because previous year का cash in cash equivalent कितना है? 9,000 and current year का कितना है? 7,800. It means आपकी cash and cash equivalent में declinement आया है. कितने से declinement आया है? 1200 rupees. So you can see that कि जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो ईच एंड एवरी एक्टिविटीज दैट इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों की एक्टिविटीज से जो भी कैश फ्लो आता था, चाहे कैश यूज्ड आता था, तीनों को ऐड करने पे वी फाइंड आउट द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट. That's why the 1200 is the answer and 1200 is the net decrease in cash flow. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका आंसर आपको पता होता है. आंसर क्या पता होता है कि जो प्रीवियस ईयर का जो कैश इन कैश इक्विवेलेंट है और करंट ईयर का कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इट विल बी योर आंसर इज नेट डिक्रीज इन कैश इन कैश इक्विवेलेंट और नेट इंक्रीज इन कैश इन कैश इक्विवेलेंट. दिस विल बी द 1200. And the additional information are as follows. That is, a dividend paid 3,500, land was purchased 10,000 and 5,000 was written off against goodwill account. आपने goodwill को 5,000 से write off भी किया है. डिबेंचर अमाउंटेड टू 6,000 वे पेड, आपने 5,000 के डिबेंचर्स को क्या कर दिया? पेड कर दिया है, उनको लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया है. प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा. इसमें जो कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं उसको पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डिविडेंड पेड. डिविडेंड पेड कहां इफेक्ट करता है? फर्स्टली इट विल बी एडेड इन द नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन. You know very well that dividend is a part of the appropriation. That's why it will be added to the net profit before
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन आइटम। सो उसके लिए हमारे फाइंड आउट होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। And their second effect of the dividend paid is it will be deducted from the cash flow from financing activity. Next is that land was purchased 10,000. So land आपने 10,000 purchase की तो land कम कर लो, प्रीवियस से 20,000 था, करंट ईयर 30,000 है, इसका मतलब आपने लैंड परचेस किया, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, यू नो वेरी वेल, बिकॉज लैंड इज अ फुल्ली गॉड गिफ्टेड थिंग्स, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड। नेक्स्ट वन इज 5,000 रुपीज आपने डिविडेंड गुडविल राइट ऑफ कर दिया। सो गुडविल पहले कितनी थी 10,000, नाउ 5,000, सो इट विल बी ट्रीटेड एज एन रिटर्न ऑफ गुडविल एंड इट विल बी टेकन एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो दैट्स व्हाई गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस के फॉर्म में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे। एंड नेक्स्ट इज अ डिबेंचर 6,000 आपने पेड कर दिया, तो इसका दो इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट तो इफेक्ट कैश में ऑलरेडी पड़ चुका होगा, एंड सेकंड इफेक्ट इज 6,000 का आपने डिवेंचर पे किया, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट। Okay, so let's we solve this question because it is a very important question for you and for the board examination such types of the question helps to you. Okay, so let us start the solution. The solution of question number 22. Question number 22, as you can see that, so first of all we prepared the cash flow statement. प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, मेरे पास आपको बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड पे प्रॉपरली स्क्रीन पर आप देखिएगा कि हाउ विल प्रिपेयर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। टॉप पे हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर किसी कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा, बट यहाँ पे किसी कंपनी का नाम गिवन नहीं है तो हम लोग उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। सो टॉप पे हमने लिख लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। Format will be a two column of amount. The first column will be known as the particulars. Second column will be known as the detail. And third column will be known as the amount in rupees. Okay? लाइन हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एज पर AS3 रिवाइज्ड, लिख दोगे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनेगा एग्जामिनर के ऊपर। सो आपने पहले फॉर्मेट ड्रॉप कर दिया पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट, एंड देयर आफ्टर आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखेंगे और जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन कर देंगे, दैट इज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, और यू नो वेरी वेल हम यहाँ प्रॉफिट कहां से मिलेगी हमको, यू कैन सी दैट द क्वेश्चन रिजर्व शेयर कैपिटल के बाद नीचे दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इट विल बी नोन एज अ रिजर्व एंड सरप्लस। सो कैश इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और ये नेट प्रॉफिट कहां से लिए हम लोग, बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट से जब भी आप प्रॉफिट लीजिएगा, ये एक माइंड में एक चीज जरूर रखिएगा कि बैलेंस शीट से में जो भी प्रॉफिट होती है वो सारा एप्रोप्रिएशन के बाद की प्रॉफिट होती है। दैट्स व्हाई अगर कोई एप्रोप्रिएशन दिख रहा हो, कैसा एप्रोप्रिएशन, इट मींस लाइक अगर आपको जनरल रिजर्व ट्रांसफर दिख रहा हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट दिख रहा हो, तो उसको कंसीडर करना जरूरी है। बट इस क्वेश्चन में भी इनिशियल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई टैक्स या डिविडेंड या फिर किसी भी तरह का रिजर्व का कोई कंसिडरेशन नहीं है। दैट्स व्हाई आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये बहुत ही तरह से क्लियर है कि हमें नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्लियरली गिवन है। प्रीवियस ईयर में नेट प्रॉफिट कितना था 10,040 और करंट ईयर में हो गया 10,560। तो करंट ईयर में हो गया 10,560 और प्रीवियस ईयर में था 10,040। सो डिफरेंस विल बी 520 रुपीज, इसको हम लोग डिटेल अमाउंट में लिखेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इट विल बी एडेड द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ढूंढो इस क्वेश्चन में, क्या डेप्रिसिएशन है, सर लैंड है और गुडविल है, लैंड जो है वो परचेज हो रही है और गुडविल राइट ऑफ हो रही है। तो डेप्रिसिएशन में एक और वर्ड आता है एमोर्टाइजेशन। सो एमोर्टाइजेशन को हम कंसीडर करेंगे, यानी कि
we consider the depreciation, sorry, goodwill written off. कितने का गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है? इन दिस क्वेश्चन गुडविल रिटर्न ऑफ बाई प्रीवियस ईयर थी 10,000, करेंट ईयर हो गई 5,000, कितना राइट ऑफ हो गया? 5। इसको डिटेल में लिखेंगे। ओके, जो भी एडजस्टमेंट करेंगे पहले उसको इनर कॉलम में करेंगे और फाइनली चीज कहां करेंगे? बाहर करेंगे। और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो है डिविडेंड पेड, एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो था वो गुडविल राइट ऑफ का था, और एडजस्टमेंट नंबर 1 था डिविडेंड। आपने डिविडेंड कितना पे किया है? 3,500, इसको भी तो ऐड करना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? अगर आपने कोई इनकम जनरेट हुई, इनकम कोई जनरेट हुई है इस क्वेश्चन में? नो सर, इनकम जनरेट नहीं हुई है, तो लेस जो करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको वैसे ही का वैसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, लिख के छोड़ेंगे। सो ऐड और लेस में सिर्फ ऐड होगा, दैट इज 8,500। सो द वैल्यू इज 0,2,0,1,9,020 rupees is operating profit before working capital changes. So it is a operating profit before working capital changes. This is a 9,020 rupees. Okay, and after that you know very well हम इसमें current assets and current liability का adjustment करेंगे। current assets कौन कौन सी हैं? current liability में दो चीजें दी हुई हैं, एक ट्रेड पेबल दिया है और एक दिया है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। The two things are included in the current liabilities, trade payable and outstanding expense. So in this question you can see that ये थोड़ा उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, that's why I will use a black ink. So trade payable पहले कितना था? 10,360. Now its value is uh, 11,840. So you can see that करंट ईयर में कितना था? 11,840 और प्रीवियस ईयर में था 10,360. So you can see that it will be increase, and you know very well जब भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको ऐड करते हैं। कितनी वैल्यूज ऐड होंगी? दैट इज 1,480। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में देखो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो था वो प्रीवियस ईयर कितना था? 700, करंट ईयर कितना हो गया? 800, यानी इंक्रीज हो गया। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गया है, सो 100 रुपीज इसको भी ऐड करेंगे। अब आते हैं करंट एसेट्स पे, ये हो गई करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है? करंट एसेट्स में भी तीन वैल्यू है, डेटर, इन्वेंट्रीज एंड कैश इन कैश इक्विवेलेंट। एंड यू नो वेरी वेल जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो डेटर और इन्वेंट्री को कंसीडर करते हैं, बट इन कैश इक्विवेलेंट को कंसीडर नहीं करते। सो डेटर और इन्वेंट्री becomes the part of working capital, cash and cash equivalent not included in it. So डेटर की बात करें तो डेटर प्रीवियस ईयर था 14,900, करंट ईयर हो गया 17,700, 17,700 minus 14,900, so the value is 2,800. so you can see that डेटर इंक्रीज कर रहा है, डेटर इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं। और इन्वेंट्रीज प्रीवियस ईयर कितना थी? 40, प्रीवियस ईयर थी आपकी 49,200 और करंट ईयर हो गई 42,700, तो इन्वेंट्री डिक्लाइन कर रही है। इन्वेंट्री डिक्लाइन कितनी कर रही है? डिडक्ट निकाल लो, 49,200 माइनस 42,700, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन्वेंट्रीज का? इन्वेंट्री का डिफरेंस आ रहा है 6,500 सॉरी। सो ये डिफरेंस आ रहा है डिक्लाइन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सो यू कैन सी दैट डेटर को माइनस करना है, बाकी सब चीजों को प्लस करना है, तो उसका नेट इफेक्ट आएगा पॉजिटिव में 5,200। सो एंड दैट इज 9 5 14 14,200 5,280 सॉरी 14,300. So this is called cash generated from operating activity. बस you know very well इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स है ही नहीं, अगर होता तो ऊपर ऐड करते, नीचे माइनस करते, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्या आ गया आपका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। So you can see that how we will calculate the cash flow from operating activity. Let's we move to the second
that is cash flow from investing activities. ओके, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है सर? इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमने कितनी एसेट्स खरीदी और कितनी एसेट्स बेच दी। तो सिंपली आई वांट टू से दैट जब भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो आप बैलेंस शीट में दो चीजें देखना, एक नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट में क्या, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर बैलेंस शीट में देखो आप, तो कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स दो है, एक लैंड है और एक गुडविल। लैंड की प्रीवियस वैल्यू थी 20,000 और करंट वैल्यू थी 30,000। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि लैंड हमने परचेस किया, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अगर लगता तो डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते और डेप्रिसिएशन यहां पर ऐड भी होता, यानी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दो जगह पड़ता, एक यहां पर ऐड भी होता और इसका इफेक्ट लैंड के परचेस पे भी पड़ता। बट यू नो वेरी वेल लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, सो दैट्स वाई सर बहुत इजी चीज है। लैंड कितना परचेस किए, पहले कितने का था 20,000 का, अब कितने का हो गया सर 30,000 रुपए का। तो डायरेक्ट आपने परचेस किया लैंड कितने का, 10,000 रुपीज का, और इट इज ऑलरेडी गिवन इन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में भी तो यही चीज दी हुई है, आप देख लो एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि लैंड वॉज परचेस फॉर रुपीज 10,000। सो आपका क्लियर दे दिया, दैट इज 10,000 इज द आउटफ्लो विच इज नोन एज द कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इट इज नोन एज द बी। बी लिखना मत भूलना, ए इट इज नोन एज बी। एंड नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट, that is a cash flow from financing activity. ओके, सो जब हम देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, जब मैं पूरा कैश फ्लो बताऊंगा ना, तो आपको जब कैश फ्लो प्रिपेयर करना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त कहां देखना है, इन्वेस्टिंग निकालते वक्त कहां देखना है, और फाइनेंसिंग निकालते वक्त कहां देखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो दो जगह आपको देखना है। जैसे जब हम इन्वेस्टिंग निकाल रहे थे तो हमें कितनी क्या क्या देखना पड़ा, नॉन करंट एसेट्स, उसमें क्या क्या, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इट इंक्लूड द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड का शेयर कैपिटल, लिसन केयरफुली, शेयर होल्डर फंड का शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सो कितनी चीजें हमें देखनी है व्हाइल वी प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, टू थिंग्स। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड का शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी विच आर प्लेस्ड इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो अगर आप देखो तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल पहले कितने का था 70,000, अब कितने का हो गया 74,000। इसका मतलब आपने शेयर इशू किया है, और इशू जब भी करते हो आप शेयर, यू नो वेरी वेल, it will be known as the inflow from the financing activity। कितने का शेयर इशू किया है, that is 4,000, so it is inflow। उसी के बाद नॉन करंट लायबिलिटी में आओ तो डिबेंचर लिखा है। डिबेंचर कितना है, पहले था 12,000 रुपीज का, अब कितने का हो गया 6,000 रुपीज का। तो प्लीज गिव मी योर आंसर एट बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस। सर अगर हम डिबेंचर की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब डिबेंचर को पे कर रहे हैं, इट मींस इट इज नोन एज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने का डिबेंचर रिडीम्ड हो गया है, द वैल्यू इज डिफरेंस इज फॉर 6,000 एंड यू नो वेरी वेल रिडम्पशन विल बी नोन एज द आउटफ्लो। इशू इनफ्लो एंड रिडम्पशन इज आउटफ्लो। एज वेल एज आपको पता है कि जब आपने शेयर इशू किया होगा या डिबेंचर इशू किया होगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। डिबेंचर पे इस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, सो आपने डिविडेंड पे किया, एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो सब लोग, एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है डिविडेंड पेड। तो यू नो वेरी वेल डिविडेंड पेड क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसको ऐड कर दिया। और दूसरा डिविडेंड पेड क्या होती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितने का था डिविडेंड पेड, 3,500। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 4,000 का इनफ्लो हो गया एंड 9,500 रुपीज का क्या हो गया, आउटफ्लो। सो फाइनली द आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, that is 5,500।
सो दिस इज 5500 आउटफ्लो, माइनस में आया। तो उसके सामने क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट इज अ सी। ओके, अब क्या करते हैं सर, सारा तो निकल गया हमारा, यस सर, ए का आंसर निकल गया, बी का आंसर निकल गया, सी, ए बी एंड सी तीनों निकल गया। एंड देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो आप ऐसे ही ओरली कैलकुलेट कर लो, 14,300 में 10,000 क्या करना है माइनस, तो कितना बचा 4,300, फिर माइनस कितना करना है 5,500, तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, 5,500 4,300, ये आ जाएगा आपका टू 1,200, 1,200 वो भी नेगेटिव में, तो नेट इंक्रीज नहीं आएगा, आंसर होगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे सर, ए प्लस बी प्लस सी टोटल करने में कितना आ रहा है 1,200 माइनस। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, यानी बिगनिंग में जितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो क्वेश्चन में देखो मैंने जो कैश छोड़वा दिया था आपको, कहा था कि नहीं कंसीडर करते वर्किंग कैपिटल में, इसीलिए नहीं करते क्योंकि यहां पर उसका कंसिडरेशन होता है। कितना बिगनिंग में था सर, बिगनिंग में था 9,000, बिगनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था 9,000, डिक्रीज कितना हो गया 1,200, तो एंड का आंसर कितना आना चाहिए, आना चाहिए, डिडक्ट कर लो 9,000 माइनस 1,200, दैट इज 7,800, एंड यू कैन सी दैट द आंसर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। सो आप देखोगे ये बिगनिंग में कैश का बैलेंस होगा और ये एंड में कैश का बैलेंस। तो आपने किया क्या, पहले ऑपरेटिंग का आंसर निकाला, फिर इन्वेस्टिंग का आंसर निकाला, फिर फाइनेंसिंग का निकाला, फिर तीनों को ऐड करके चेक किया कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि माइनस में, यानी नेट इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज। तो ये आया नेट डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 1,200। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, इट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, 9,000 गिवन था, उसमें से 1,200 माइनस किया, तो कितना बचा 7,800, and this is your answer which is known as the cash in cash equivalent at end. This is your final answer and this is a full and well prepared format of cash flow statement. जितना मुझे ये स्क्रीन पर एक बोर्ड पे जितना पॉसिबल हो सका उतना बेटर ढंग से मैंने प्रेजेंट किया है। आप चाहो तो यहाँ पर और अच्छे से लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिख सकते हो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन इन्वेंटरी। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको कि और कितना अच्छे से क्लियर कर सकते हो सारी चीजों को। बाकी चीजें आपके सामने हैं, यहाँ पर प्लस माइनस साइन दिखाना जरूरी है, और जब भी आप कोई वैल्यू नेगेटिव में रखोगे तो उसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। मेरी बात समझो, दिस इज अ प्रेजेंटेशन while we preparing the cash flow statement. I hope it is clear for you. This is a solution of question number 20 22. This is a solution of question number 22. Okay, एंड इसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है। यहाँ मेरे पास स्पेस कम था, दैट्स व्हाई आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पेज। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से मेरा सेकंड पेज स्टार्ट है, ठीक है। ये पेज नंबर 1, दिस इज द पेज नंबर 2। जहां से आप पेज नंबर खत्म करोगे वहीं से आप स्टार्ट कर दोगे पेज नंबर 2। लेट्स वी टेक द वन क्वेश्चन which are related to the cash flow from financing activity. So the next question is, you can see that on your screen, that is a calculate cash flow from financing activities, and the information are equity share capital. The 2 years information are given, 2018 and 2017. That is equity share capital. Equity share capital is a 20 lakh and 14 lakh, and number second is a 12% debenture. Okay, 12% debenture, it will be a dash
2 lakh. And number third, 10% bonds. 10% bonds. It will be a 4 lakh dash. Dash means no amount. And additional information are as follows. Additional information are as follows, and the additional information number 1, interest paid, that is interest paid rupees 24,000 and dividend paid rupees 80,000. So you know very well how we will calculate the cash flow from financing activities from the given information. The information are as follows. So first of all, you know very well, while we calculating the cash flow from financing activity, it is a solution. How we will calculate the cash flow from financing activities? First of all, we take the, you can see that equity share capital in the previous year is 14 lakh and the current year is 20 lakh. So you can see that previous year 14 लाख रुपए थी इक्विटी शेयर और प्रेजेंट में कितनी हो गई 20 lakh. So it is called issue of equity share capital and the amount is 6 lakh. Number second, you can see that 12% debenture, previous year is 2 lakh and current year is 0. So it is known as the, you know very well, it will be known as the redemption of 12% डिबेंचर. आपने 12% डिबेंचर को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया. पहले कितने का डिबेंचर था 2 लाख, अब कितना है, कुछ नहीं. इसका मतलब आपने डिबेंचर को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया. कितना रिडीम कर दिया, 2 लाख. नंबर थर्ड, bonds. In the previous year bonds is 0 but in the current year bond is 4 lakh. So आपने बॉन्ड इशू किया है क्योंकि बॉन्ड की पहले वैल्यू क्या थी 0, अब आपकी बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4 लाख. सो अगर आप यहां देखो तो इशू इज अ इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिडम्पशन इज अ आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, whereas the issue of 10% bond will be taken as the inflow of the financing activities. The next one is the dividend paid and interest paid. Interest paid amount is 24,000. So it will be taken as the outflow from the financing activities, and dividend paid rupees 80,000 will also taken as the outflow from the financing activity. It is very easy. इशू किया पैसा आया, रिडम्पशन किया पैसा गया, इशू किया फिर पैसा आया, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड किया, सो इट इज नोन एज द आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो उसको हम लोग क्या करेंगे, एड एंड लेस करेंगे. यू कैन सी दैट 6 लाख एंड 4 लाख, 10 लाख. 10 लाख इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ 2 लाख, 1 लाख 4,000 यानी 3 लाख 4,000. सो नेट आपके पास कितना पैसा आया, दैट इज 6 lakh 96,000 is a net cash flow from financing activities. Okay, so you can see that how we will calculate the cash flow from financing activities from this question. ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको ये ध्यान रखना है कि while we calculate the cash flow from financing activity, so it is very important to take two important items. The first items, that is which are related to the share capital, and 12% debenture and 10% bond, it was related to the non current liability. ये बात आपको ध्यान रखनी है. सो जब भी आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो आपका फोकस कहां रहेगा, यू हैव टू फोकस ऑन द टू थिंग्स, दैट इज अ शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड के किस आइटम पे, शेयर कैपिटल के आइटम्स पे. नंबर 2, दैट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट
we include the various things in the financing activities like a issue of share, issue of debenture, redemption of preference share, redemption of debenture, interest paid and dividend paid. And after that, you will calculate the net cash flow from financing activities. So I hope in today's video, we almost completed the first question which are related to the cash flow statement. And in this question, you can see that how we will prepare the cash flow statement. And thereafter, we are solving we solved a very important practical problem which are related to the cash flow from financing activity. Okay, so आज के लिए इतना ही. And I request to all the students, please solve all the practical problem given in your book. And if you have any doubt and suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot and take care.